میں نے اس کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ہم نے آبادی کے قلب میں گھسنے کی بجائے وہاں سے نکلنے کی راہ تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہاں سے زبردستی نکل بھاگنے کا بنیادی سبب یہ خوف تھا کہ ہمارا کوئی خود ساختہ ہمدرد ہمیں ہمارے مطلوبہ گھر تک پہنچانے کے لیے ہمارے گلے پڑ جاتا تو ہم مشکل میں پھنس جاتے۔ ہم جن گھروں کا جائزہ لینے کی نیت سے کرول باغ کے علاقے میں آئے تھے، ان کے بارے میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتے تھے۔ اس کے ساتھ میرے ذہن پر ایک اور فکر بھی سوار تھی۔ پچھلے دن طے ہونے والے پروگرام کے مطابق رینا اجیت رائے کو 4 اور 6 بجے کے درمیان ہم سے آخری ملاقات کے لیے آنا تھا۔ رینا کی دلیل یہ تھی کہ وہ پہلے بھی مجھ سے ملتی رہی تھی۔ دہلی میں میرے قیام کے آخری دن اس معمول کا اعادہ ضروری تھا تاکہ اس کے بڑوں کو اس پر کسی قسم کا شبہ نہ ہونے پائے۔ نریش شرما کے آدمیوں نے میرے کمرے کو جس انداز میں میرے لیے مخدوش بنا دیا تھا وہ رینا سے پوشیدہ نہیں تھا، بلکہ وہ خبر اسی کے ذریعے میرے علم میں آئی تھی۔ رینا اپنی زبان بند رکھنے کا فیصلہ کر لی تھی تو ہمارے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکتا تھا کہ ہمیں اپنے کمروں سے ہٹانے کے بعد راہ والوں نے وہاں کیا کارروائی کی ہے۔ رینا اپنی پوزیشن کو شکوک و شبہات سے بالا رکھنے کے لیے آ رہی تھی۔ اس کے لیے میرا کمرہ ہی سب سے بہتر تھا، جہاں کہی جانے والی ہر بات کہیں نہ کہیں سنی جا رہی تھی۔ مجھ سے مخصوص نکات پر بات کر کے وہ اپنے دامن سے رہے سہے شبہات کے داغ بھی آسانی سے دھو سکتی تھی۔ میں رینا کی اس ترجیح میں دخل انداز ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس وقت رینا کا تحفظ ہمارے اپنے تحفظ کے لیے ضروری تھا۔ نریش شرما کو ذرا بھی شبہ ہو جاتا کہ ہماری اس لڑکی سے کوئی ملی بھگت تھی تو بہت آسانی سے وہ اسباب سمجھ سکتا تھا جن کی بنا پر میں اس کے بچھائے ہوئے ہر جال سے بچتا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں صرف رینا کے بارے ہی میں سوچ رہا تھا۔ وہ لڑکی راہ کی بہت نچلی سطح پر کام کرتی تھی، لیکن اپنی خوبصورتی اور خوش کلامی کی وجہ سے ڈرا کے عیاش طب افسروں میں بھی بہت مقبول تھی۔ اعلیٰ افسران سے اپنے قریبی مراسم کی وجہ سے وہ تقریباً ہر اہم بات سے باخبر رہتی تھی۔ اس میں شاید اس کی کوششوں کا بھی دخل ہوتا تھا، ورنہ یہ ضروری نہیں تھا کہ ہمارے بارے میں طے کی جانے والی ہر اہم بات اس لڑکی کے علم میں آتی جاتی۔ وہ میری ہمدرد بن چکی تھی، اس لیے اپنی تنظیم میں رہتے ہوئے ہر وقت ایسی باتوں سے باخبر رہنے کی کوشش کرتی تھی جو کسی بھی طرح میرے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی تھی۔ وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتی تھی، ہر جتن کر کے مجھے خطرے سے قبل از وقت آگاہی بھی دے دیتی تھی۔ راہ کی صفوں میں جوان، خوبرو اور کج ادا لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ وطن کی سلامتی کے لیے اپنی آبرو لٹا دینے کے پرفریب نعرے کے ذریعے انڈین سیکرٹ سروس نے معاشی بدحالیوں میں گھری ہوئی ایسی لڑکیوں کی ایک پوری فوج پالی ہوئی تھی۔ ان میں سے بیلا سنگھ کو بھی میں دیکھ چکا تھا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ کسی بھی اوباش صفت مرد کو رینا اور بیلا میں سے کسی ایک کے انتخاب کا موقع دیا جاتا تو وہ رینا اجیت رائے پر دوسری نظر ڈالنے کی زحمت کے بغیر بیلا سنگھ کے قدموں میں سر چکا دیتا۔ اپنی بے شرمی اور آوارہ مزاجی سے قطع نظر بیلا سنگھ واقعی غیر معمولی حسن کے مالک تھی، مگر یہ رینا اجیت رائے کی یا پھر میری خوش قسمتی تھی کہ انڈین سیکرٹ سروس کی طوائفوں کے اسکواڈ کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے نریش شرما کو بیلا سنگھ اور دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں رینا اجیت رائے زیادہ مرغوب تھی۔ شراب کے بعد اسے جب بھی شباب کی ضرورت محسوس ہوتی تھی وہ رینا کو اپنی خلوت میں بلا لیتا تھا۔ رینا درون پردہ میری خیرخواہ تھی۔ نریش شرما عملی طور پر میرا سب سے بڑا حریف تھا۔ میرے بارے میں انل بسواس کے ہر منصوبے کو وہی عملی جامہ پہناتا تھا، اس لیے میرے خلاف ہونے والی کارروائیوں کے بارے میں سب سے زیادہ باخبر ہوتا تھا۔ اس وقت تک رینا اور نریش کی حد سے بڑی ہوئی ہوسناک دوستی میرے لیے سودمند ثابت ہو رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ رینا اپنی آخری ملاقات میں مجھے کچھ نہ کچھ نیا مواد ضرور فراہم کرے گی۔ کچھ دیر تک کرول باغ کی گلیوں اور آبادی میں بھٹکنے کے بعد ہم ایک مصروف سڑک پر نکل آنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران میں نے خاص طور پر یہ بات نوٹ کی کہ اس خوشحال اور آباد علاقے میں بڑے مکانوں پر بھی کہیں مسلح گارڈ نظر نہیں آئے تھے۔ چھوٹے گھر عام طور پر تنخواہ دار دربانوں کی ضرورت سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ کرول باغ کے کشادہ گھروں کے پھاٹکوں پر کہیں کہیں ادھیڑ عمر یا عمر رسیدہ چوکیدار ضرور نظر آئے، جن کا کام شاید صرف اتنا تھا کہ مکینوں اور ان کے مہمانوں وغیرہ کی آمد و رفت کے لیے بڑے پھاٹک کھول کر بند کر سکیں۔ اس زمانے میں شہری آبادیوں میں انفرادی تشدد اور دہشت گردی کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ دنیا کے بڑے اور گنجان آباد شہروں کی بات تو ایک طرف، کراچی جیسے شہر میں متمول شہری خود کو اپنے گھروں میں محفوظ تصور نہیں کرتے تھے۔ ہر آن کسی چور، ڈاکو، قاتل یا اغوا کر کے اٹھا لے جانے والوں کی مداخلت کا خطرہ ان کے سروں پر ننگی تلوار کی طرح لٹکتا رہتا تھا۔
इन खतरों से बचाव के लिए घरों पर मुसल्लह हिफाजती गार्ड्स मामूर किए जाने लगे थे। इस रुझान का जहां फायदा था वहां एक बड़ा नुकसान भी था कि ऐसे गार्ड्स अपने आकाओं की सरवत और तमव्वुल का निशान समझे जाने लगे थे। किसी भी घर पर मुसल्लह गार्ड का इश्तिहारी वजूद देखकर समाज दुश्मन अनासिर फौरी तौर पर समझ लेते थे कि असामी तगड़ी है। मकीन अपनी चार दीवारी में महफूज रहते थे, मगर उससे बाहर निकलते ही उनके लिए दूसरे खतरात शुरू हो जाते थे। मेरे लिए ये बात तमानीन का बाइस थी कि दिल्ली या कम अज कम करोल बाग के मुअज्जिज़ीन के घरों में मुसल्लह गार्ड्स रखने का रवाज नहीं था। शायद वही एक मुशाहिदा मेरी इस कोचा नवर्दी का हासिल था। इंडियन सीक्रेट सर्विस वालों को हमारे कमरों में जो कुछ करना था वो कर चुके थे। मुझे और गजाला को ये फिक्र नहीं थी कि हम वहां से ज्यादा देर गायब रहे तो वो कमरे में कोई ज्यादा गड़बड़ कर देंगे। CSD, बीम गन और ऑपरेटर्स का कमरे में वजूद नहीं था। वो तीनों खतरनाक चीजें मैं पहले ही सुनील के हवाले कर चुका था। वापसी में हम पहाड़गंज के एक साफ सुथरे और मुख्तसर से निहारी होटल में बैठ गए, जहाँ चबूतरे में गड़ी हुई जिन्नाती देग पर एक बारेश नौजवान आस्तीने चढ़ाए बैठा हुआ था और होटल से बाहर तक की फिजा निहारी की खुशबू से महक रही थी। उम्दा निहारी के लिए बछिया का गोश्त लाजमी ख्याल किया जाता है, जबकि भारत में आबाद हिंदू अक्सरियत गाय को अपनी माता मानकर पूजते हैं। अकायद की संगीन तजाद की वजह से भारत में गाय के ज़बीहे पर पाबंदी चली आ रही है, मगर सुना यही जाता था कि जायके और चटखारे के शौकीन मुसलमान हर खतरा मोल लेकर चोरी छुपे अपने काम कर गुजरते हैं। दिल्ली के मुसलमान मोहल्लों में पोशीदा तौर पर गाय का ज़बीहा होता था। जरा सी देर में सारा गोश्त घरों में तकसीम हो जाता था और कहीं गौ माता की हत्या का कोई निशान बाकी नहीं छोड़ा जाता था। मैंने फर्ज कर लिया कि इस निहारी होटल के मालिकान भी अपनी निहारी का काम माल ऐसे किसी जरिए से हासिल करते होंगे। निहारी वाकई बहुत लजीज थी, जिसमें चटपटे मसाले इस्तेमाल किए गए थे। दिल्ली आकर हम निहारी न खाते तो अपने साथ बड़ा जुल्म करते। शिकमसेर होने के बाद गजाला ने होटल से निकलते हुए कहा, जो नेमत जिसके लिए लिख दी गई है वो इससे जरूर फैज याब होता है। मैंने हंस कर जवाब दिया। मेरी कोशिश थी कि हम रीना से तय किए हुए वक्त से पहले होटल पहुंच आए, लेकिन पैदल चलने के खब्त में हमें जरा सी देर होगी। 4 बजे हम काउंटर से चाबी ले रहे थे तो हमारे लिए कोई पैगाम था न रीना का दूर दूर तक कोई सुराग नजर आ रहा था। हम दोनों चाबी लेकर सीधे अपने कमरे की तरफ चल दिए। आपकी चहेती अभी तक नहीं आई। अब बिला वजह उसकी परेशानी की तरफ से फिक्रमंद थे। रास्ते में गजाला ने हंस कर कहा, उसने 4 बजे का नहीं 4 और 6 बजे के दरमियान का वक्त दिया था। मैंने उसे याद दिलाया। फिर रात को गोपाल भी आएगा। गजाला ने संजीदगी से कहा, आपको इससे बहुत कुछ तय करना है। दरअसल गोपाल ही इस दिन का अहम तरीन मुलाकात ही था, क्योंकि मुझे उसे मिलकर अनिल विश्वास के खात्मे के मंसूबे की जुजियात तय करना थी और फिर उसी को दिल्ली से हमारी रवानगी का बंदोबस्त करना था। कमरे में पहुंचने के बाद हमारी गुफ्तगू का रुख बदल गया। 4:30 बजे रीना अजीत राय ने लाबी के इंतकाम से अपनी आमद की इतला दी और मैं उसे फौरी तौर पर ऊपर बुला बैठा। अब मैं अपने कमरे में चली जाऊं? गजाला ने रीना की आमद की खबर सुनकर सवाल किया। जरूरी नहीं है, अब उसके रवैये में बहुत संजीदगी आ गई है, मैंने कहा। फिर भी वो आपसे बेतकल्लुफ है। मैं बैठी रही तो वो आपसे खुलकर बात नहीं कर सकेगी। गजाला का नुक्ता वजनी था। मैंने उसे इत्तिफाक करते हुए जवाब दिया, अभी बैठी रहो, वो आए तो उससे मिलकर चली जाना। जरा सी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी इजाजत पाकर रीना कमरे में आ गई। अपने मामूल के मुताबिक उसने गहरा और शोख मेकअप किया हुआ था। उसका लिबास भी सिन्फ मुखालिफ के लिए खासा पुरकशिश था, क्योंकि उसमें से रीना के बदन के बाज हिस्से झलक रहे थे। उसने पुरतबाक अंदाज में हम दोनों से हाथ मिलाया और बेतकल्लुफी से एक सोफे पर बैठ गई। गजाला ने खुश खलकी से उसकी मिजाज पुरसी की और फिर मुआज़त करके कमरे से चली गई। मेरा ख्याल था कि तुम ठीक 4 बजे यहाँ पहुँच जाओगी। मैं दिल्ली में आवारा गर्दी का प्रोग्राम मुख्तसर करके ठीक वक्त पर वापस लौट आया था। मुझे ब्रीफिंग लेने में देर हो गई। उसने मिनी बार की तरफ जाते हुए बेपरवाही से कहा, कैसी ब्रीफिंग? मैंने हैरत से सवाल किया। मैं परेशान हो गया था कि उसने कमरे में छुपे हुए आलात की मौजूदगी से वाकिफ होने के बावजूद एक ममनू मौजू पर बात छेड़ दी थी। अगर उसे मेरे बारे में कोई ब्रीफिंग दी गई थी तो उसे बाहर जाने के बाद इसका जिक्र करना चाहिए था। नरेश जी के लिए मुश्किल था कि वो तुम्हारे साथ सरकपा थे। मैं बहुत सी बातों से वाकिफ हूँ, जो रह गई थी वो मुझे बता दी गई हैं। उसने छोटे से रेफ्रिजरेटर के पास खड़े खड़े अपने लिए ड्राई चिन का एक गिलास तैयार करते हुए जवाब दिया, दिल्ली से जाने से पहले तुम्हारा पूरे पस मंजर से वाकिफ होना जरूरी है, ताकि तुम पाकिस्तान लौटने के बाद यकसुई से अपना काम सर अंजाम दे सको। कल तुम्हारे अंकल और नरेश की ब्रीफिंग के बाद भी ये जरूरत बाकी थी। वो अपना गिलास लेकर दोबारा सोफे पर लौट आई। बात होगी तो तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा।
फिर तुम किस इंतजार में हो? बिला वजह तजस्सुस फैलाने के बजाय बराह रास्त शुरू हो जाओ। उफ, वो मुंह बनाकर तीखी चितवन के साथ बोली। तुम तो होंठ भी तर नहीं करने दोगे। उसने मेरे गिलास से एक छोटा सा घूंट लिया और गिलास हाथ में थामे दोबारा सोफे से उठ गई। मेरे करीब से गुजरते हुए उसने मुझे आंख मारकर मेरी पुष्ट पर एक हल्की सी चुटकी ली और डटाई से मेरी मसहरी पर नीम तराजों की। कुछ थकी हारी मालूम हो रही हो, मैंने तंजिया लहजा में कहा। शायद ब्रीफिंग ने तुम्हारे नन्हे से दिमाग पर ज्यादा असर डाला है। कोई सहूलत मुयस्सर हो और आदमी इससे फायदा न उठाए तो नशुक्रा कहलाता है। तुम्हारी पख जा चुकी है। मेरी मानो तो तुम भी यहीं मसहरी पर आ जाओ। मसहरी पर वो खुफिया कैमरों की जद में आई हुई थी, जबकि मैं उस रेंज से बाहर था। वो अपने मुकालमों से इंडियन सीक्रेट सर्विस के एजेंटों को सुना रही थी कि उसने अलविदाई मुलाकात में मुझे एक मरतबा फिर अपने जाल में फांसने की कोशिश की थी। मैं यही ठीक हूँ। पता नहीं तुम्हारे नरेश ने मेरे दिमाग की कौन सी कुल मरोड़ी है कि अब जिंदगी की हर रंगीनी से दिल उचाट हो गया है। यह नई खबर है, वो ताज्जुब अमेज आवाज में बोली। मैं पहली बार तुमसे मिली थी तो तुम्हारा रंग ही कुछ और था। तुम जैसा भूखा दरिंदा मेरे मामले में इतना सर्द कैसे हो गया? होने वाली बात को रोकना किसी के बस में नहीं होता। ये बातें नरेश को मालूम है। अपनी नई कमजोरी की वजह से मुझे नरेश के सामने भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसे पूछोगी तो वो तुम्हें हर बात बता देगा। अभी तुम कह रहे थे कि नरेश ने तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला कर दिया है। क्या उसने तुम्हें मुझसे दूर रहने की हदायत दी है? उसने चौंक कर इस्तबाह अमेज लहजे में सवाल किया। मैं कह रहा हूं कि यह पेचीदा कहानी है। उसने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, बस तुम उसी से बात कर लेना। इस वक्त मैं तुम्हारी जुबान से कोई ब्रीफिंग सुनने का मुंतजिर हूं। तुम बातों के दौरान भी शराब नोशी का शुगल जारी रख सकती हो। उसने ड्राई जिन और टॉनिक वाटर के महलूल का गिलास अपने नरम और नाजुक और आतशीन लबों से हटाया, फिर गहरा सांस लेकर बोली। बात जरा कुछ ज्यादा लंबी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। तुम कहीं से भी शुरू कर दो, सारी कड़ियां खुद ब खुद मिल जाएगी। उसने लम्हा भर के लिए कुछ सोचा, फिर मुझसे पूछा, तुम जॉन स्मिथ के बारे में क्या जानते हो? कौन जॉन स्मिथ? मैंने बेसाख्ता हैरत से पूछा। यह नाम मेरे लिए अजनबी है। ये वही अमेरिकी है जो होटल सम्राट के एक कमरे में मुर्दा पाया गया था। रीना ने मेरे चेहरे पर नजरें जमा कर कहा। ओह। मैंने ऐसी सदाकारी की जैसे रीना की जुबान से हवाला सुनते ही मुझे हर बात याद आ गई हो। जो कुछ अखबारात में आया है वही मेरे इल्म में भी है। मैं वही जानना चाहती हूँ, रीना ने इसरार किया। उसने बिस्तर पर अपनी पोजीशन बदली थी। वो एक अमेरिकी सफारती अफसर था जो तातीलात पर दिल्ली आया हुआ था। यहाँ उसे मार दिया गया, मगर उससे मेरी ब्रीफिंग का क्या ताल्लुक है? मैंने उसके इसरार पर अपने वजूद में बेचैनी और इस्तराब की एक गहरी लहर दौड़ती हुई महसूस की। ऐसा नहीं था। रीना के अगले फिक्रे ने मेरे जहन में बढ़ता हुआ दबाव कम कर दिया। वो बता रही थी, जॉन अमेरिका की डिप्लोमेटिक कोर का रुकन जरूर है, मगर उसका असल ताल्लुक अमेरिकी CIA से है। इन लोगों को अमेरिका से बाहर अपना काम करने के लिए अक्सर ऐसी सफारती आड़ की जरूरत पड़ जाती है। ये गहरे राज की बातें हैं। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने मुझे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया हो? मैंने घबरा कर पूछा। नहीं, तुम्हारे लिए ये जानना इसलिए जरूरी है कि तुम्हारे दिल में एतमाद पैदा हो सके। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम नरेश या अंकल के लिए काम नहीं करोगे। तुम दुनिया की बड़ी और मजबूत तरीन कौमों के मिशन को आगे बढ़ाओगे, जिनमें अमेरिका सरे फहरिस्त है। और मगर अमेरिका के एक बड़ा अफसर तुम्हारे शहर में बहुत बेबसी की मौत मारा जा चुका है। मैंने उसकी बात काट कर कहा। उसके अंजाम से हौसले की बजाय इबरत हासिल होती है। ये पाकिस्तानी एजेंटों की खुली दहशतगर्दी थी। इनको मैंने एक मरतबा फिर मासूमाना अंदाज में उसकी बात काट दी। क्या इसके पाकिस्तानी कातिल पकड़ लिए गए? वो पकड़े नहीं गए क्योंकि दहशतगर्दी की कोई शनाख्त नहीं होती। वो खुलकर मुकाबला नहीं करते, सायों की तरह खामोशी से नमूदार होते हैं और अपना कारी वार करके दोबारा अपने बिलों में छुप जाते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए जिस सफाकाना खूनरेजी की जरूरत होती है, इससे हर मजहब ताकत को रेज करती है। हालात बता रहे हैं कि राह के दफ्तर में आते जनी और जान के कत्ल में पाकिस्तानी एजेंटों का हाथ है। भारत की सरजमीन पर कोई और कुव्वत इतनी दीदा दलेरी से साजिश नहीं कर सकती। वो अदाकारी को भूलकर यकायक जज्बाती हो गई थी। एक भारतीय और वो भी राह की एजेंट होने के नाते उसे ऐसे ही रद्द अमल का मुजाहरा करना चाहिए था। मैंने गुफ्तगू को मखसूस दायरे में महदूद रखने के लिए जल्दी से कहा, तुम अमेरिका के बारे में कोई अहम बात बताने जा रही थी। जॉन CIA का डिप्टी डायरेक्टर था। वो कराची में बैठकर मुसलमानों की आलमी दहशतगर्दी से निमटने के एक बहुत बड़े मंसूबे पर काम कर रहा था। उसने अपने गिलास से मजीद एक घूंट लेने के बाद कहना शुरू किया, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां बहुत खतरनाक और ताकतवर हैं। इनकी दरपर्दा हमायत से कुछ लोग जॉन स्मिथ के खून के प्यासे हो गए और उसने खतरे की संगीनी भांपते हुए कराची से आर्जी पसपाई इख्तियार की।
बज़ाहिर वो चंद रोज की छुट्टियां गुजारने के लिए दिल्ली की महफूज फिजाओं में आया था, इसलिए मकामी हुकाम ने उसकी हिफाजत के लिए कोई गैर मामूली बंदोबस्त नहीं किया। यह संगीन चूक थी। तुमने देख लिया कि उसे जहर देख कर मार दिया गया। वो बात अखबारों में नहीं आई थी। उसकी जुबान से जहर का जिक्र सुनते मेरे दिल में मजीद जानने की ख्वाहिश पैदा हो गई। मैंने पूछा, क्या उसे खाने में जहर दिया गया था? यह तफ्तीश हो रही है। उसके मैदे की आलाइश में इंतहाई सरीउल असर जहर पाया गया है, जो सिर्फ खैबर के पहाड़ों में पाए जाने वाले सांप से हासिल किया जा सकता है। यह नामुमकिन है कि खैबर का सांप होटल के कमरे में घुस गया हो। सम्राट के अमले ने कमरे का कोना कोना छान लिया, वहां कोई सांप नहीं था। वो खतरनाक जहर किसी बैरूनी तरीके से उसके बदन में उतारा गया और वो कोई आवाज निकाले बगैर मर गया। क्या यह सब भी तुम्हारी ताज़ा ब्रीफिंग में बताया गया था? मैंने नेक नीयती से पूछा। मेरे सवाल पर वो कदरे चिढ़ गई और तेजी से बोली, अहमकाना बातें मत करो। अहम वाकयात से हम लोग अपने तौर पर बाखबर रहने की कोशिश करते हैं। ब्रीफिंग कुछ और थी। तुम बार बार दखल अंदाजी करके मुझे इस मौजू से हटा रहे हो। सॉरी रीना, मैं कोशिश करूंगा कि अब कोई गैर मुतलका सवाल न करूं। मैं तुम्हें जान के बारे में बता रही थी। इस वक्त वो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे मजबूत मोहरा था, जो हमारी फैसला कुन चाल से पहले पिट गया, मगर जल्दी कोई और उसकी जगह ले लेगा। उसने पूरे खलूस से यह बात समझ ली थी कि पाकिस्तान दुनिया भर में रियासती दहशतगर्दी का सरखेल है। ISI के जरिए वो लोग मुंतखब दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करते हैं, इन्हें पालते हैं, वसाइल की ऐसी भरमार करते हैं कि जल्द ही वो खुद कफील हो जाते हैं। फिर उनको पड़ोसी मुल्कों में हाँक दिया जाता है। भारत, कश्मीर और अफगानिस्तान इनकी तवज्जो के खास मुल्क हैं। अब तुम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हो। थोड़ी देर पहले तुमने मुसलमानों की आलमी दहशतगर्दी का तज़किरा किया था। मैंने उसे टोका। मैं इसी तरफ आ रही थी। पाकिस्तान की इन कामयाबियों से दुनिया में दूसरे दहशतगर्दों को तकवीयत मिल रही है। अफगानिस्तान में जहाद का नारा लगाकर रूसियों को बुरी तरह मारा गया। मुजाहिदों को बर्दाश्त करना और उनको माली और फौजी इमदाद फराम करना अमेरिका की मजबूरी बन चुका था। रूस अफगानिस्तान में खाक चाट कर अपने जख्मों को सहलाता हुआ भाग निकला। इस जंग के भारी मुआशी बोझ और सियासी बहरान ने रूस का तिया पांचा कर दिया। आज अफगानिस्तान की सरजमीन पर रूसी और अमेरिकी हथियारों से लैस दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी लश्कर मौजूद है, जो हर वक्त जहाद के जोश में खोया रहता है। तुम्हारी ये बातें उलझी हुई और नाकाबिल फहम है, मैंने पुरतशवीश लहजे में कहा। थोड़ी देर में सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। उसने मुझे तसल्ली दी और अपनी बात जारी रखी। एक तरफ आलमी इस्लाम की तरफ से जहाद के नारे बुलंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया के पड़ोसी ममालिक भयानक दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। ये सब एक दूसरे में गडमड होकर रह गया है और अमेरिका ने हालात के रुख को भांप कर इस इबहम से फायदा उठाने का फैसला कर लिया है। जान इसी मंसूबे पर काम कर रहा था। तुमने बहुत बेरहमी से जहाद और दहशतगर्दी को यकजा कर दिया। मैंने एहतजाज किया। मुझे मालूम था कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी। मैं हिंदू हूं, मैं तुम्हारे धर्म को नहीं मानती, इसलिए जहाद को भी नहीं मानती। यह बताओ कि जहाद के नाम पर पाकिस्तान से हथियार और गोला बारूद लेकर कश्मीर पर चढ़ाई करने वालों को मैं क्या नाम दूं? इन्हें दहशतगर्द नहीं तो क्या कहूं? यह दूसरों के मजहब पर रकीक हमला है। तुम जहाद की रूह को समझे बगैर ऐसी बातें कर रही हो। मजर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं हिंदू घराने में पैदा हुई इसलिए हिंदू हूँ। मुझे जहाद की रूह को समझने की क्या जरूरत है? मैं तो ये देखती हूँ कि कुछ लोग मरने मारने का इरादा करके हथियार उठाते हैं और इनके हरीफों पर मौत राज करने लगती है। यह मेरी नहीं, सारी गैर मुस्लिम दुनिया की सोच है। तुम मुझसे बहस कर सकते हो, शायद मुझे कायल या खामोश भी कर दो, लेकिन अमेरिका और पूरी दुनिया को कौन समझाएगा? मैं तुमसे सिर्फ अपनी नहीं, अमेरिका और उसके सारे हलीफों की बात कर रही हूँ। कोई सख्त बात कहकर उसे भड़काना मुनासिब नहीं था। वो आलमी फितनों की बात कर रही थी। इनके ज़हनों में छुपे हुए जहर को अपने बड़ों की हदायत पर मेरे सामने उगल रही थी। मेरे लिए यही बेहतर था कि खामोश रहकर उसकी हर बात सुनता रहूं और एतराज़ करके उसे नाराज़ न करूं, ताकि किसी बड़ी और हौलनाक आलमी साजिश का ताना बाना मेरे सामने आ सके। मेरे लिए वो सुनहरी मौका था जिसे गंवाना मुनासिब नहीं था। अपने मजहब से हर एक को मोहब्बत होती है। मैंने थोड़े से तवक्कुफ के बाद कहा, ये सब बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं, लेकिन तुम मुझे दूसरों की सोच के बारे में बता रही हो तो मैं हर बात सुनने पर मजबूर हूँ। तुम अपनी बात जारी रख सकती हो। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क है। अपने मशरूब का एक बड़ा घूंट लेकर वो दोबारा बोलने लगी। इनका मुल्क दो तरफ से वसीर समंदरों से घिरा हुआ है। इनको बजा तौर पर यह ज़ौम है कि बाहर से कोई इन पर हमला आवर नहीं हो सकता, मगर वो अपने हम मजहबों के लिए मुसलमानों के बढ़ते हुए खतरे की तरफ से सख्त फिक्रमंद हैं। इन्हें मुस्तकबिल का नक्शा भयानक नजर आ रहा है। वो समझते हैं कि इन जहादी कुव्वतों को खुली छूट दी गई तो मुस्तकबिल में दुनिया इस्लामी गलबे में आ जाएगी।
یہ ان کا گمان ہے، وہ بھول گئے کہ خلیج کی جنگ میں سب سے پہلے 2 مسلمان ملک ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے تھے۔ وہ ایک واقعہ تھا، دوسرے واقعات میں تسلسل ہے۔ یورپ میں بحران چل رہا ہے، جگہ جگہ مسلم باغی سر اٹھا رہے ہیں، مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی بارود کے ڈھیر پر جی رہے ہیں۔